dance, you name it, and you will see the kind of diversity India has. We are inheritors of the great civilization which started a few centuries before Christ was born and continues till today. It is an undying and continuous civilization. I hope and pray that all of you enjoy the diversity which Bharat Mahotsav has to offer you. Ladies and gentlemen, हमारा जो पहला अवार्ड है बेहद खास है हम सबके लिए। सबसे पहले तो मैं इनके बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगी और उसके बाद मैं जरूर उन्हें भी यहाँ पर बुलाकर उनसे हम सब सुनना चाहेंगे। We are all extremely blessed to have with us the presence of our honorable MLA. Ladies and gentlemen, may we please give it up for Dr. Om Prakash Hudla जी। और जब तक वो यहाँ पर आते हैं और जब यहाँ आ भी जाएंगे उनके बारे में और ज़रूर कहना चाहूँगी कि हमारे फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं पहले। At the same time, this is his second term as the honorable MLA. Ladies and gentlemen, the one who believes in great philanthropic work irrespective of where and what he does in his personal life. Ladies and gentlemen, इनके बारे में इतना ही कहना चाहूँगी that ever since जब he was not even the former minister, even before that, he always believed in great humanitarian values. He's the one who makes sure that every 3 months to 6 months, he makes it possible for every girl, you know, of course, who belonged to the place where they really can't afford to spend for their own wedding. And this is the wedding which happens in Indian rupees and it's only rupee 1. So even for the guy's family and the girl's family, 2,000 couples join hands together. As we always say, to find a soulmate is so difficult, but हमारे absolutely honorable MLA sir 2,000 शादियां एक साथ कराते हैं without charging anything from them, spending every single penny, and even after that, for all those who really are needy and look forward to support and guidance, he's the one who gives them that perfect guidance. Besides this, at the time of Corona, when we were all at our places feeling safe, we were all safe because we were at our places enjoying ourselves, or maybe on Zoom calls, you know, making faces or whatever. But let me tell you, he's a gentleman who went out of his house to support all those at the time of Corona. As a Corona warrior, did his ultimate best. Ladies and gentlemen, हम सब तहे दिल से हमारे भारत गौरव सम्मान के लिए डॉक्टर ओम प्रकाश हुडला जी को इनवाइट करना चाहते हैं, उनको आमंत्रित करना चाहते हैं यहाँ पर। डॉक्टर ओम प्रकाश हुडला जी ने नेपाल में भी सर्वश्रेष्ठ विद्यायक का सम्मान एवं गोवा में मानव सेवा के लिए इतना कुछ किया है कि उन्हें वहां पर भी फेलिसिटेट किया गया है। सर मुझे और भी कुछ कहना है इनके बारे में, उसके बाद हम इन्हें फेलिसिटेट करना चाहेंगे। Ladies and gentlemen, डॉक्टर हुडला जी का नाम मानव सेवा के डेफिनेटली उसमें तो टॉप में आता ही है। एट द सेम टाइम विधायक हुडला जी ने अपना इतना साथ दिया है और अपने जो जीवन की सारी कमाई है वो समाज सेवा में हमेशा से लगाई है और आगे भी लगाते रहेंगे। उनके मुस्कुराहट पर नहीं जाइए क्योंकि वो मुस्कुराते बहुत कम है। कहते हैं जो दिल से जीते हैं उन्हें तो वो अंदाज ही पता चल जाता है। उन्हें they don't differentiate between what is happiness and not so happy moment, but they always believe in giving, and he is a giver. Ladies and gentlemen, may we please give it up for our ultimate giver. हम सब इतने खुश नसीब है to present the Bharat Gaurav Samman to Dr. Om Prakash Hudla ji. Heartfelt congratulations to all of you that we have their presence here, and thank you so much, sir. Anyone kindly join us here? Well, दोस्तों मैं आपसे कहना चाहूँगी we have very few awardees, but let me remind you because we are also active on Facebook, Instagram, LinkedIn, at the same time Twitter. Sir, please. Thank you. Yes, sir. All right. So can we please have the music, sir? हमारे कंसोल वाले सर देख रहे हैं। वैसे हम डीजे वाला बाबू कहते हैं। डीजे वाला बाबू जरा म्यूजिक बजा दे। So thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, हमारा भारत
floor of Samman to Dr. Om Prakash Vidlaji. May I please request my dignitaries, Dr. Sandeep Marwa sir and co-chair sir to kindly be here with us, and आपसे हम जरूर दो शब्द सुनना चाहेंगे सर. भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे. आज स्विट्जरलैंड की इस धरती पर मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि इतना बड़ा सम्मान मुझे यहां मिलेगा. एक 20 रुपए की मजदूरी करने वाले किसान का बेटा राजस्व विभाग में अधिकारी के रूप में काम करता है भारत सरकार में, और वहां से वीआरएस लेकर के राजनीति में पदार्पण करने का काम करता है. और उसके बाद 2013 में विधायक बनने का अवसर मिला. वसुंधरा जी सरकार में राज्य मंत्री के रूप में काम करने का अवसर दे दिया. मेरा एक सपना था, गरीबी को बहुत छू करके देखा है मैंने, स्पर्श किया है, एहसास है गरीबी क्या होती है. और मैंने कल्पना की, हे ईश्वर मुझे इस लायक बनाए कि राजस्थान का नहीं देश का कोई भी व्यक्ति मेरे पास आए और ये पीड़ा बताए कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है मेरे से, और मात्र 2 घंटे में मैं शादी का प्रबंध कर सकूं, ये कल्पना की थी. आज तक हम करीब 2000 लड़कियों की शादी 1 रुपया लेकर कर चुके हैं, और इसकी कोई संस्था नहीं है. जो संस्था है वो आपके सामने खड़ी है. आज अभी 14 नवंबर को कोरोना काल में मेरे क्षेत्र में 21 परिवारों ने अपने मां बाप खो दिए. उनकी 21 बेटियों की शादी अभी 14 नवंबर को करके आपके बीच आया हूं. ये सौभाग्य आप सबके आशीर्वाद से मिल पाया. 2 अक्टूबर को नेपाल की धरती पर आपके सामने खड़े विधायक को इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट एमएलए का अवार्ड मिला. 23 अक्टूबर को कोरोना काल में जो 10,000 पैकेट 71 दिन तक रोज घर पहुंचाए, उस कोरोना का सेवा के लिए साउथ पैसिफिक यूनिवर्सिटी ने गोवा में डॉक्टरेट की उपाधि दी. और आज आपके बीच आप लोगों ने भारत गौरव सम्मान से मुझे सम्मानित किया है. इस सम्मान को मैं अंतिम सांस तक पलकों पर बिठाए रखूंगा. मेरी कामयाबी के पीछे मेरे माता पिता, गुरु महाराज, मेरी बस्ती माता और मेरी विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज के लोगों के आशीर्वाद के कारण ही आज इस लेवल पर पहुंच पाया हूं. मुझे खुशी इस बात की भी है कि मेरे एक छोटे से गांव हुरला का दौसा जिले राजस्थान और भारत देश में बना हो, और उसका छोटा सा आदमी आज स्विट्जरलैंड की धरती पर भारत गौरव सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है. ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है. कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाले बड़े होते हैं. दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाले बड़े होते हैं. आज कॉन्फ्लुएंस ने स्विट्जरलैंड और भारत के बीच जो प्रेम के संबंधों को बढ़ाने का काम किया है, मैं स्मिता जी श्रीवास्तव और इनके पूरे तमाम साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देता हूं. आज मैं अपनों के साथ भारत से स्विट्जरलैंड की धरती पर ज्यूरिख में आया हूं. बहुत अपनापन महसूस हो रहा है. मेरी विधानसभा क्षेत्र में 4 लाख लोग निवास करते हैं. उन 4 लाख लोगों को हर व्यक्ति परमानंद की प्राप्ति चाहता है, और परम आनंद की प्राप्ति जब होती है जब उसको संतुष्टि मिलती है. और आपके लाडले विधायक ओम प्रकाश उर्ला को जब
आनंद आता है जब गरीब बेटी की शादी सेकंडों में कर देता है। आज इस स्विट्जरलैंड की धरती पर इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, कोरोना काल में बहुत सारी बेटियों ने अपने मां बाप को खोया है। मैं आज आपके माध्यम से राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे भारत में जहां बेटी ने अपना मां और बाप दोनों खो दिया है, उसकी शादी 1 रुपए में करने का संकल्प लेता हूं आपके बीच में। और यह संकल्प बहुत बड़ा संकल्प है। जब संकल्प लेता है तो आदमी को व्यवस्था करनी पड़ती है। और आप सब लोगों से गुजारिश करता हूं, चले नजीर तू इस तरह कारवां के साथ, नजीर व्यक्ति को कहा है, चले नजीर तू इस तरह कारवां के साथ, जब तू ना चल सके तो तेरी दास्तां चले। हम रहे या ना रहे, लेकिन हमारे किए गए कार्यों को, हमारी विदेश राज्य मंत्री आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी के कार्यों को, आदरणीय स्मिता श्रीवास्तव की कॉन्फ्रेंस के कार्यों को, इन कार्यों को हम भुला नहीं पाएंगे। इन लोगों ने जिस तरह से कल्चरल प्रोग्राम किया, दूसरी सारी चीजें यहां हम लोगों को देखने को मिली, मैं पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, कुल बस्ती माता की। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर। आपका जो नाम है ओम है एंड विच इज एब्सोल्युटली यूनिवर्सल। बहुत बहुत शुक्रिया। आज स्विट्जरलैंड के जूरिक शहर में भारत महोत्सव का आगाज किया गया। इस अवसर पर कोरोना काल में हमारे और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा हर घर तक भोजन पहुंचाना, हर मरीज तक दवा और ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाना, आवश्यक वस्तु पहुंचाना, हर संभव मानव की मदद करना, ऐसे सभी कार्यों की प्रशंसा की गई और हमको इन कार्यों के लिए भारत गौरव सम्मान से पुरस्कृत किया गया। ये भारत गौरव सम्मान हमारे द्वारा पिछले समय में की गई गरीब बेटियों की शादी के लिए दिया गया है। मैं इस सम्मान को मेरी विधानसभा क्षेत्र महुआ के सर्व समाज के लोगों के चरणों में समर्पित करता हूं और आपकी चरणों की धूल का आशीर्वाद लेकर के भविष्य में भी गरीब बेटियों की शादी अंतिम सांस तक करता रहूंगा। ये जो सम्मान मिला है मुझे आज विदेश की धरती पर, इस सम्मान को भी मैं आपको श्रेय देना चाहता हूं ताकि मुझे ऊर्जा मिले, मुझे आशीर्वाद मिले और आगे भविष्य में भी ये काम लगातार निरंतर जारी रखूंगा। धन्यवाद। वाच काच मन